Assalamu alaikum, everyone. Thank you all for joining our webinar. We'll wait 10 minutes for everyone to join. Meanwhile, I'm Moeed. I'm in the tech team of Dow PropTech. I just wanted to show you guys some products that we've been working on. I'll just give you a quick demo. There are a few modules that we've worked on, and then I hope you guys will enjoy it. So I'll be sharing my screen in a bit. सबसे पहले तो मैं आपको एक जो मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया है ताकि सबके लिए आसानी हो, that's meetings.dowproptech.com, where you can go and book a call with our sales and wealth consultants. So there are multiple people listed, qualified people. उनका आपको पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है, at a quick glance कहाँ से वो पढ़े हैं, उन्होंने कोर्सेज कौन से किए हैं, and then you Basim Tariq, who will be joining us today to deliver this webinar. मैं अगर उनकी details देखना चाहूँ, so I can quickly see कि उनका experience कितना है इस industry में, education कहाँ से है, courses कितने किए हैं, and then you can view their LinkedIn profiles. And if you want to book an appointment with them, you can just click on book appointment. And then a window will open where you will see the times that he has mentioned, and then you can book these slots, and then he will be guiding you on your journey, whatever journey that you want to take, whatever investments you want to make with us, right? And then बस आप यहाँ से book करेंगे, बासिम को एक notification चला जाएगा कि you've booked a meeting, and फिर वो आप meeting attend कर सकते हैं after you've booked it. Another module that I wanted to show you was webinars का हम लोगों ने एक पेज बनाया ताकि सारी चीज़ें streamlined रहें, जहाँ पे आप past webinars देख सकते हैं, उनकी recordings देख सकते हैं अगर आपने देखनी हो, और आप जो upcoming webinar है, जिस तरह ये आज का webinar है, आप यहाँ से register भी कर सकते हैं. So if you just want to keep up with any future webinars, you can go on this website and register yourself and watch previous recordings of the previous webinars. एक और चीज़ काफ़ी exciting मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, that's our chatbot, where you can go and chat with our chatbot. आपको कोई भी information चाहिए regarding Dow PropTech, तो आप यहाँ से जाके पूछ सकते हैं. Initial information, obviously, this is still in beta phase, so there might be some inconsistencies, but we're obviously working on developing this even more. Inshallah, jo V2 version hoga, that will be way more equipped with the financial knowledge, real estate knowledge, और पाकिस्तान के जो सारे financial domains हैं, उसकी knowledge इसके पास होगी. अभी अगर मैं आपको एक छोटा सा demo देना चाहूँ, तो अगर मैं इससे पूछता हूँ कि give me an overview of the projects undertaken by Dow, तो उसमें वो आपको सारे प्रोजेक्ट्स की जो हम लोगों ने हमारे पास अभी करंटली लिस्टेड हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन दे देगा. एंड देन यू कैन आल्सो आस्क इट फर्दर कि अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट, और अगर आपने कैलकुलेशंस करवानी है, लेट्स से आपने कहा कि मेरे पास ₹1,00,000 है, मैं किधर इन्वेस्ट करूं, तो वो भी इस चीज़ से हेल्प करेगा. व्हाट आइडियली आई वांट के सारे ये चैटबॉट यूज़ करें, एंड देन दे बुक अ मीटिंग विद our wealth consultants on the meetings page, जहाँ पे आप appointments book करें और फिर आप बताएं कि हमने चैटबॉट से ये डिस्कशन की थी, आप हमें सम बेहतर गाइड करें, हमें ये आइडिया है. सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज. आप भी अपने एंड से रिसर्च करके आए हुए होंगे, एंड देन आवर वेल्थ कंसल्टेंट्स विल बी वेल इक्विप्ड टू असिस्ट यू विद इट. I hope you guys have understood, and inshallah in the future you guys will use these tools. ये हम लोग आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, आप लोगों की ही आसानी हो, आप लोगों को हमसे कम बात करना पड़े, एंड देन आप खुद इतने चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, एजुकेट हों. कुछ भी आप इससे पूछना चाहते हैं, आपको रिप्लाई करेगा किसी चीज़ के भी हवाले से relevant to Dow PropTech and real estate. So hopefully these things are beneficial for you all. And at the end of the webinar, inshallah, Basim will guide you through another module that we're very excited about, that we're currently working on, and that will help you in your financial journey as well. So we're just waiting for people to join. 43 लोगों ने join कर लिया.
As soon as more people come in, we'll start the webinar. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम शाफात साहब। जी, मैं शफात बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये क्या तरतीब है, क्या पोजीशन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार। अभी तो ये इनिशियल था, मैं टेक टीम में हूँ तो मैं टेक की चीज़ें आपको दिखा रहा था। अभी बासिम आएंगे तो वो आपको और जो वेबिनार का जो एक्चुअल टॉपिक है आज का, रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल रियल एस्टेट, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं रेलेवेंट टू द टॉपिक, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए। ये मैं इनिशियल मॉड्यूल्स दिखा रहा था, चैट पॉट दिखा रहा था, जो आप चैट कर सकते हैं उससे, आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग डाउ प्रॉपटेक। फिर मैं आपको मीटिंग्स का पेज दिखा रहा था, जहाँ पे आप जाके मीटिंग्स बुक कर सकते हैं विद आवर वेल्थ कंसल्टेंट्स। Basim will be joining in just a minute, so I hope thank you for your patience. जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, we'll start the webinar. अस्सलाम वालेकुम। मोहित भाई, मुझे सुन सकते हैं आप? जी 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 तो मुझे मेरे 2-3 क्वेश्चन है टैक्स रिलेटेड। जी जी, आप पूछें। ये जो टोकनाइजेशन है, ये किस ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं? हम लोग थर्ड पार्टी लेजर यूज कर रहे हैं, पॉलीगॉन। उसके ऊपर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप वो पब्लिकली देख भी सकते हैं इफ यू वांट। हम लोग थर्ड पार्टी लेजर यूज कर रहे हैं पॉलीगॉन का। अच्छा, दूसरा कोई ये पूछना था, ये हमारे लोकल स्टेट के साथ कंप्लायंस इसका किस तरह है, अगर आपके इल्म में ये चीजें हो? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी या बाकी इस तरह की माइनिंग चीजें, ये तो सारी इलीगल या बैन है। श्योर श्योर। तो ये रियल रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन कैसे जी, कंप्लायंस के साथ देखिए है? देखिए, ये थोड़े क्या नाम है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। आई वुड लाइक कि हम लोग ये सारी चीज़ें एड्रेस करें एट द एंड ऑफ द वेबिनार, क्योंकि कॉन्वर्सेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। वंस द वेबिनार इज ओवर, यू कैन आस्क बासिम एज वेल, ही विल गाइड यू बेटर। अच्छा, चले ठीक है। मैं कहा था वो जब तक नहीं आते तो पूछ नहीं लेते नहीं, हैं। आपके आपके क्वेश्चन जरूर आंसर करेंगे हम, जस्ट वेट फॉर द वेबिनार टू एंड। आई थिंक बासिम थैंक हैज यू। joined. He is Chief Sales Officer at Dow PropTech. Basim, I would like you to take over the webinar. Good luck. Thank you, Moeed, and thank you everyone for joining in here on our webinar today. So I was hearing जो question अभी मोहित के साथ हो रहा था, and I would love कि वो question अगर comment section के अंदर हमारे पास आ जाए. So what we will do is कि हमारा जो session जब end होगा तो हम पूरा एक Q&A रखेंगे. So आज जो webinar का content है वो हमने कोशिश की है कि उसको concise रखें and अपने topic के ऊपर भी कुछ बातचीत करें एंड हाउ डाउ प्रॉप्टिक फंक्शन, उसके ऊपर भी बातचीत करें. जस्ट लाइक यू आस्क्ड अ क्वेश्चन जो डाउ प्रॉप्टिक रिगार्डिंग था, हमारे वर्किंग मॉडल रिगार्डिंग था. देयर आर पीपल हु जॉइन अस ऑन अ वीकली बेसिस, दे वांट टू लर्न कि डाउ प्रॉप्टिक कैसे काम करे, उनके सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं. सो वील हैव अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ हाउ एंड व्हाट डाउ प्रॉप्टिक इज ऑल अबाउट. So I'll just share my screen. मुझे आप लोग बता दीजिएगा if it's visible. So हम इसको start करते हैं. So Moeed, is it visible? Okay. So आज का हमारा जो टॉपिक है वेबिनार का वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है. पीपल ऑफन कम अप विद द क्वेश्चन कि उनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, एंड which one is right for them. So इसको डिस्कवर करने के लिए हम इनकी कुछ बेसिक्स समझते हैं. कुछ हमारी टीम ने रिसर्च की है, वी वुड वांट कि हम वो नंबर्स आपके साथ शेयर करें. बट बिफोर दैट, a short segment about Dow PropTech. So Dow PropTech is a technology platform with the purpose कि हम टेक को इस्तेमाल करके जो रियल एस्टेट की बाइंग जर्नी है, सेलिंग जर्नी है, उसको इम्प्रूव करें. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड अराउंड अस एट अ पेस दैट इज फिनोमिनल. सो हम एग्जांपल देते हैं करीम की, जिसमें एक टैक्सी का सिस्टम था जहां कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता था
कि फोन की स्क्रीन से लोग टैक्सी को बुला रहे हैं, उसका फेयर पे कर रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. दैट इंडस्ट्री was extremely localized and people were not tech savvy at all. But now when we see, तो जिस बंदे को वो टेक्स्ट पढ़ना भी नहीं आ रहा होता वो भी करीम को यूज कर रहा होता है. So things are changing and evolving. So real estate segment के अंदर it is an industry जिसका potential huge है. It is the biggest capital market of our country. And इसके अंदर हम technology wise we were lacking behind. So our approach was कि हम क्या technology से changes लेके आएं जो लोगों के लिए आसानी पैदा करें, उनको नुकसान करने से बचाएं और उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करें. सो दिस इज व्हाट आवर प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट. हम लोगों ने तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड किए हैं. वी हैव अराउंड 60,000 प्लस पीपल ऑन आवर प्लेटफॉर्म. 1100 हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड. We've done a business of around 6 billion rupees. These are the number of square feet sold and number of transactions that we have done. अभी मैं आप सबको एक क्विक रन डाउन भी दूंगा प्लेटफॉर्म का, जिससे हम लोगों को समझ में आएगी कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं. बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री के इश्यूज और प्रॉब्लम्स थे क्या. रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास वाज एक्सेसिबल टू अ वेरी फ्यू पीपल. सो हमारे मुल्क का जो टॉप 10% का सेगमेंट है, जो अच्छे पैसे कमाता है, जो अच्छे पैसे सेव करता है, सिर्फ वही अपने एसेट्स बना पाता है. Only they were able to build their homes, only they were able to get their second income because real estate की entry ही 50 लाख करोड़ रुपए इस तरह की अमाउंट से होती है. And that's not accessible to everyone. There is a risk of fraud क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इंफॉर्मेशन लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाई जाती, तो फ्रॉड का रिस्क हमेशा से रहता है कि उनको पता ही नहीं होता who owns what and what are they buying. इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को जो है हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व करने की कोशिश की है. एंड आई विल जस्ट शो यू गाइस बाय शेयरिंग द प्लेटफॉर्म ओवर हियर ये किस तरह से हमने किया. सो आई हैव लॉग्ड इनटू माय प्लेटफॉर्म and my account and I'll just quickly show you कि how all of this is working and हम लोगों ने क्या चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक दी हैं जो लोगों को इनेबल करी हैं कि वो अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें. वंस यू लॉग इन, यू हैव अ डिजिटल वॉलेट जो आपकी होल्डिंग रिप्रेजेंट करता है. जिस तरह ये वॉलेट मेरी होल्डिंग रिप्रेजेंट करे, आपका पूरा KYC हो जाता है in the account settings where you fill in your personal details, your address, ताकि आप तक आपका एक एग्रीमेंट जो फिजिकल फॉर्म का पेपर है, आपका एसेट है, वो आप तक पहुंच सके. इसी तरह बैंक डिटेल्स, लीगल इंफॉर्मेशन, ताकि आपका नेक्स्ट ऑफ किन और एग्रीमेंट्स सारे उस लिहाज से ड्राफ्ट हो सकें. दिस इज बेसिकली माय यूनिक वॉलेट आईडी जिसकी बेसिस पे मैं ब्लॉकचेन के ऊपर जाके सर्च कर सकता हूँ. ये मेरे वॉलेट का नंबर है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर फीट्स किस प्रोजेक्ट्स के अभी तक पड़े हुए हैं. अगर हम प्रोजेक्ट्स पेज को देखें तो वी हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू 3 सेगमेंट्स. डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज वो हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, जो प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं और जनरेट कर रही हैं, प्रॉपर्टीज लिस्ट होने लगे उन हम लोग आपको बता सकते हैं. So let's just look at the why we are showing you these details. So अगर हम Elements Residencia के कार्ड को देख लें, so it's telling you कि ये एक mixed use serviced apartments की बिल्डिंग है, यानी इसके अंदर fully furnished apartments हैं. This building is contracted with Rumi जो इस्लामाबाद F6 के अंदर है. इसकी प्राइस is 17,000 rupees per square feet. इसकी लोकेशन यहाँ पे आ रही है. If you'll click on it, आप गूगल मैप्स पे चले जाएंगे and आप वहाँ से लोकेशन देख सकते हैं. आपको बता रहे हैं 131 इसमें अपार्टमेंट्स हैं that are fully furnished, 44 शॉप्स हैं and 30,000 स्क्वायर फीट्स का एरिया जो है वो हम लोगों ने जिम, कॉफी शॉप्स और इस तरह की अम्यूनिटीज के लिए प्लान किया हुआ है. इसकी जो ग्रोथ है दैट्स अराउंड 25% यहाँ से ईयर ऑन ईयर. सो 17,000 का रेट मजीद 25% इंक्रीज होगा. इसकी जो कंप्लीशन है वो दिसंबर 2025 में टारगेटेड है और अभी तक इसके अंदर 365 लोगों ने इन्वेस्ट किया है. तो ये इंफॉर्मेशन तो आपको पहले दिन के ऊपर फर्स्ट लुक में ही अवेलेबल है ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स. वंस यू डाइव डीप इनटू इट, तो पिक्चर वीडियोस पे आई वोंट वेस्ट योर टाइम. देयर इज डाउ रेटिंग सिस्टम जिसमें हमारे कस्टमर्स ने इस प्रोजेक्ट को रेट किया हुआ है. इसका डाउ का एक स्कोर आ रहा है जिसमें बेसिकली हम किसी भी प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करने से पहले उसकी एक फीजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. इफ द प्रोजेक्ट इज अबव 550 देन वी ऑनबोर्ड इट, वरना हम प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड नहीं करते. वी थिंक इट्स
टू रिस्की फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इनटू दैट प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर को देखते हैं, वी लुक एट द यूज केस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि वो बिल्डिंग है क्या, वो किस मकसद से बन रही है, उसको कौन इस्तेमाल करेगा, उसके इर्द गिर्द वैसी कितनी बिल्डिंग्स हैं, क्या उस इलाके में ऐसी बिल्डिंग रिक्वायर्ड भी है या नहीं। एंड इन फैक्टर्स पे लॉजिकली न्यूमेरिकल स्कोरिंग के बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करते हैं, ताकि किसी भी एक बंदे की बायसनेस इसमें इन्वॉल्व ना हो। इट इज डेटा दैट ड्राइव्स आवर डिसीजन। इसी तरह ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हो रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है। एंड देन वी आर शोइंग यू कि अभी इसमें कितने स्क्वायर फीट्स ऑफ एरिया रहता है फॉर द फ्यूचर वर्क दैट इज टू बी डन। यही डिटेल में प्रोजेक्ट के स्टार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। दिस हैज 2,15,000 स्क्वायर फीट्स ऑफ एरिया, जिसमें से 152,000 बिक चुका है एंड 62,000 स्क्वायर फीट्स आर लेफ्ट। दिस इज publicly shown you so that you can see two things. एक तो ये है कि अगर एक बिल्डिंग 50-60% बिकी है तो क्या 50-60% बनी भी है या नहीं बनी। सो वेरी कॉमन इशू कि डेवलपर्स एक बिल्डिंग के नाम पे पैसे कलेक्ट कर लेते हैं बट वो उस बिल्डिंग पे लगते नहीं है। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन डे 1 पे ही आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, सो यू विल मेक अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड ये कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ओवर सेलिंग इज अ कॉमन इशू जो रियल एस्टेट के अंदर आता है। सो यहाँ पे यू नो द टोटल सप्लाई, उसमें से कितना बिक गया, कितना रह गया, इस सब का जो खाता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर मेंटेन हो रहा है। ब्लॉकचेन, जिन लोगों को नहीं पता, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन जहाँ पे टैंपर नहीं हो सकती। एक पब्लिक लेजर, एक खाता है जो छपता है टाइम एंड अगेन, और इसके अंदर डेटा टेम्पर नहीं हो सकता। सो वेस्ट के अंदर बैंक्स इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम्स के लिए भी यूज करें ताकि वो मनी ट्रेल मेंटेन कर सकें। एंड वी आर यूजिंग इट हेयर टू मेंटेन कि कब हमारी प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा बिका, टाइम स्टैम्प, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की डिटेल्स हैं, ये इसके सब के सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। FBR का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोडेड है, SECP का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोडेड है, एंड देन NOCs भी यहाँ पे अपलोडेड हैं। सो आप लीगल चेक्स अपने डे 1 पे बिफोर इन्वेस्टिंग अ रुपी यहाँ से पूरे कर सकते हैं। देन लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन जो है ये यूट्यूब पे आपको राउट करेगा एंड यू कैन सी ऑल द पीरियोडिक अपडेट्स ऑफ दिस बिल्डिंग। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, सो आप यहाँ पे दो तरीके हैं जिनसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूल ईदर बाय अ होल यूनिट, जिस इंसान ने पूरा का पूरा अपार्टमेंट लेना है, सो ही कैन चूज अ फ्लोर, ही कैन चूज कितने बेडरूम का अपार्टमेंट उसको चाहिए, ही कैन सी ऑल द डिटेल्स। उसकी यहाँ पे एक VR वाली वीडियो भी उसको नजर आ जाएगी एंड ही कैन मेक हिज ओन प्लान। सो जितनी भी डाउन पेमेंट करनी है, दिस इज ऑल अवेलेबल, जो वो अपने फोन की स्क्रीन से कर सकते हैं। हाउएवर, if someone wants to be a part of this building जो अभी 17,000 तक आ चुकी है, this project started at around 5,000, so 3x लोगों के पैसे बढ़ चुके हैं। किसी ने 5 लाख लगाया था तो 15 लाख हो गया, किसी ने करोड़ लगाया था तो 3 करोड़ हो चुका है। सो अभी भी इसके अंदर 25% की ग्रोथ यहाँ से आगे मौजूद है। सो उसको अवेल करने के लिए मिनिमम लॉट साइज 25 स्क्वायर फुट का है। आप 4,25,000 के कुछ स्क्वायर फीट भी ले सकते हैं। व्हाट हैपेंस टू दो स्क्वायर फीट्स, वो किस तरह से मैनेज होते हैं, उनको भी हम समझते हैं। इसको ट्रांजैक्शन को एक दफ़ा हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो आप अपनी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, जिस तरह मैंने अकाउंट सेटिंग्स में की हुई हैं। इफ़ अ डिस्काउंट वाउचर इज़ अवेलेबल, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू चेक आउट। जब आप चेकआउट करते हैं तो ये आपको उस बिल्डिंग की डायरेक्ट अकाउंट डिटेल्स दे देता है। ये किसी भी इंडिविजुअल की बैंक डिटेल्स नहीं है। सो जिस भी एंटिटी के नाम पे आपने सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई की है, यू विल डायरेक्टली पे योर मनी टू दैट एंटिटी, और उसी एंटिटी का आपको एक एरिया राइट्स का एग्रीमेंट मिल जाएगा। सो एरिया राइट्स एग्रीमेंट इज समथिंग जो कि इट कम्स अंडर पाकिस्तान लॉ। अगर आप एक पूरा अपार्टमेंट लेते हैं या स्क्वायर फीट लेते हैं, दोनों केसेस में आपको एक एरिया राइट्स का एग्रीमेंट मिलता है और आपके राइट्स डिफाइन हो जाते हैं। सो इन केस ऑफ एन अपार्टमेंट यू हैव द राइट टू ओन, आप उसको ओन करते हैं। यू हैव द राइट टू रेंट इट आउट, आप उससे रेंट रिसीव कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू सेल दैट अपार्टमेंट एंड गेट योर प्रॉफिट, एंड यू हैव द राइट टू ट्रांसफर दैट अपार्टमेंट टू समवन, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या जो भी। इसी तरह जब आपके कुछ स्क्वायर फीट्स हैं तो आपको एक एरिया राइट्स का एग्रीमेंट मिलेगा, जिसके अंदर आप यू कैन नॉट लिव इन इट, जो पहला पॉइंट था ऑफ एन अपार्टमेंट, बट यू कैन सेल दो स्क्वायर फीट
ऑन आर डिजिटल मार्केट प्लेस, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप अपने प्रोपोर्शन स्क्वायर फीट का रेंट रिसीव करेंगे, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट सेक्शन में दिखाऊंगा, एंड आप अपने स्क्वायर फीट ट्रांसफर कर सकते हैं टू समवन, वो भी हम अभी देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट मेच्योर प्रॉपर्टीज एंड अंडरस्टैंड कि अगर हम कुछ स्क्वायर फीट ले लें और वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके अंदर हम लोगों को कैसे फायदा हो सकता है। सो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का कार्ड बेसिकली आपको ये बता रहा है, अगर हम एक्रॉन को देखें, कि ये 110 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है वो रेंट जनरेट करिए। सो किसी भी बंदा जिसके पास एक्स नंबर ऑफ स्क्वायर फीट्स हैं, ही विल रिसीव दिस अमाउंट ऑफ रेंट। 1 फुट वाले को 110 रुपए मिलेगा, 1000 फुट वाले को 1,10,000 रुपए रेंट मिलेगा पर मंथ। ये 12 शॉप्स हैं और इनको 25 लोगों ने मिलके लिया हुआ है। हर साल इसका रेंट 8% बढ़ता है, और जब रेंट बढ़ता है तो पर स्क्वायर फीट प्राइस भी बढ़ती है। सो लास्ट ईयर दिस प्राइस वाज अराउंड 22,000, अब ये प्राइस बढ़ के 27,500। इसका रेंट 110 की 110 बढ़ चुका है। सो इतना बिल्ट अप प्रॉपर्टी है, उसका किराया भी बढ़ता है हर साल, और उसकी पर स्क्वायर फीट वैल्यू भी बढ़ती है, और आपको रिटर्न मिलता है। सो यू हैव टू वेज टू गेट रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। वन इज कि आप अपने स्क्वायर फीट बाय करें, उनको होल्ड करें और थोड़े टाइम बाद बेच दें। सो आपको कैपिटल गेन और प्रॉफिट होता है। द सेकेंड पार्ट इज कि आप अपने स्क्वायर फीट अगर एक बनी हुई बिल्डिंग में उसको होल्ड करते हैं तो मंथ ऑन मंथ आपको रेंट भी मिल रहा होता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ट्रांजैक्शंस टैब। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी, जो कंफर्म है, जो पेंडिंग है। दिस इज माय लेजर फॉर 3 पेजेस, एंड ये ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में जाके आप जिस प्रोजेक्ट की भी आप इन्वेस्टर हैं उसका एक लेजर देख सकते हैं कि किस वॉलेट नंबर से किस वॉलेट नंबर में कितने स्क्वायर फीट किस तारीख को ट्रांसफर हुए। सो ये ब्लॉकचेन की खासियत है कि ये पूरा लेजर मेंटेन करके रखती है एंड ये आपको शो करती है। दिस इज आवर मार्केट प्लेस, जिसके ऊपर आप अपना ऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं, आप अपना ऑर्डर बेच सकते हैं टू द 60,000 अदर पीपल। एंड यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस के कुछ पुराने ऑर्डर्स भी मिलेंगे। वी हैव डन रीसेल्स ऑफ अराउंड 800 मिलियन, और इसी मार्केट प्लेस से हम लोगों ने इनेबल की हैं। फाइनली यहाँ पे रिपोर्ट्स का सेक्शन है, और बाकी चीज़ें ये आप लोगों तक मैं छोड़ता हूँ, आप इसको अपने एंड पे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये एक शॉर्ट सी समरी थी ऑफ व्हाट डाउ प्रॉपटेक इज डूइंग, एंड नाउ आई विल डिस्कस जो हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक था उसके ऊपर, एंड देन वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन जिसके अंदर आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो अभी भी हमारी इस मीटिंग के कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करते रहें, हम पोस्ट दिस प्रेजेंटेशन उन सबको आंसर करेंगे। नाउ द प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये सारी चीज करते हैं, इट्स कॉल्ड टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन इज रिप्रेजेंटिंग एक रियल वर्ल्ड की चीज ऑन चेन, बेसिकली इंटरनेट के ऊपर ऑन ब्लॉकचेन, और हम उसको ट्रेडेबल बना दें, उसको हम एक्सेसिबल बना दें फॉर एवरीवन। सो इस तरह इस एनिमेशन को अगर हम देखें तो अगर एक घर है जो 4,000 स्क्वायर फीट का है, उसके हम हजार स्क्वायर फीट के टोकन्स बना के उसको डिजिटल एक जगह पे लिस्ट कर दें और उसको ट्रेडेबल बना दें, तो ये सारी चीज टोकनाइज हो गई है। You can basically buy ये वाले tokens, you can trade these tokens, you can own all of these token and own the whole house as well. So this is the whole process जो इस सारी चीज के बैक एंड के ऊपर है। इसके बेनिफिट्स अगेन वही हैं जो हमारे कन्वेंशनल मसले मसाइल थे उसको ये हल करता है। जिस तरह से अभी मैंने आपको पूरा प्लेटफॉर्म का डेमो दिया, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हाउ दिस इज सॉल्विंग दोज इश्यूज। पीपल आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी जो पहले उन लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं थी। डेवलपमेंटल रियल एस्टेट, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो इतने पैसे इकट्ठे कर सके कि वो एक बिल्डिंग के अंदर या तो खुद कंस्ट्रक्शन करे या उसका हिस्सा बन सके, बट सबके लिए अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी पहले अवेलेबल नहीं थी। Now let's have a look at the commercial and residential real estate, उसकी क्या टाइप्स हैं और किस तरह से वो बिहेव करती हैं। सो इन कमर्शियल रियल एस्टेट वी हैव शॉप्स एंड रिटेल यूनिट्स जो कि हमारे यूटिलाइज होते हैं, हमारी कैफेज की स्पेसेस होती हैं, जो हमारी आप कह लें इवनिंग टाइम्स के लिए जनरली हम लोग वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वी हैव ऑफिस स्पेसेस, ये भी कमर्शियल कैटेगरी में आती हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। वी हैव होटल अपार्टमेंट्स जो कि हमारी
हॉस्पिटैलिटी साइड के ऊपर काम करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कमर्शियल रियल एस्टेट। रेजिडेंशियल साइड के ऊपर अगर हम देखें तो वी हैव फैमिली होम्स, वी हैव अपार्टमेंट्स एंड वी हैव लग्जरी होम्स जो कि वेकेशन होम्स की तरह भी ट्रीट होते हैं। एंड ये दोनों टाइप्स किस तरह बिहेव करती हैं और इनके क्या ट्रेंड्स हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सो इसका ओवरव्यू ये कि अभी हम लोगों के जिस तरह से वक्त के साथ टेक्नोलॉजी आई है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारे काम करने के ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। काम करने के ट्रेंड्स के साथ हमारी रियल एस्टेट जो है उसको इस्तेमाल करने के ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। सो अगर मैं कमर्शियल की बात करूं, पहले हम लोगों की रिटेल आउटलेट्स, शॉप्स, बुटीक्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती थी। बट व्हाट वी हैव सीन इज कि यहाँ पे अब हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है, 5 से 10% का डिक्लाइन फ्रॉम 2023 टू 2024। क्यों डिक्लाइन नजर आ रहा है? क्योंकि फुटफॉल डिक्रीज कर रहा है 10 to 20%। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्यों डिक्रीज कर रहा है? ये डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर मार्केट एज वेल, कि ई कॉमर्स काफी ज्यादा एक अपराइजिंग ट्रेंड है। पीपल आर बाइंग स्टफ ऑनलाइन, पीपल आर सेलिंग स्टफ ऑनलाइन। वो अपनी सारी की सारी सप्लाई चेन एक रिमोट तरीके से सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को शॉप्स में आके टाइम स्पेंड करके चीज नहीं खरीदनी पड़ रही, उसको उनको ऑनलाइन रिव्यूज मिल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस मिल रही हैं, एंड दे आर शॉपिंग एट देयर कन्वीनियंस। दिस ट्रेंड इज पिकिंग अप, इसीलिए रिटेल प्रॉपर्टीज की डिमांड में थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है। बट अगर हम इसी चीज को देखें कि अगर किसी जगह पे डिक्लाइन आ रहा है तो एक और टाइप की रियल एस्टेट के अंदर इंक्रीज भी आ रहा है। को वर्किंग स्पेसेस, जो कि ऑफिस स्पेसेस हैं, जहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेज, छोटे छोटे यूनिट्स लेके एक ही बिल्डिंग के अंदर काम करें, उसके अंदर एक अपवर्ड ट्रेंड है। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 70% तक को वर्किंग स्पेसेस की डिमांड इंक्रीज हुई है। सो जो हमने की स्मॉल बिजनेसेस की, उनकी टीम्स जिन लोगों पे बैठ के काम कर रही हैं, दे आर यूजिंग कोवर्किंग स्पेसेस, एंड बिकॉज ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस जो बिल्डिंग्स हैं उनके रेंट्स भी बढ़ रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में उनमें ग्रोथ भी आ रही है, एंड ये रियल एस्टेट फ्यूचरिस्टिक रियल एस्टेट बनती जा रही है, फ्यूचर में बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने वाली रियल एस्टेट बनती जा रही है। इसी तरह अगर हम वेयर हाउसेज को देखें, सो वेयर हाउसेज की फैसिलिटीज जो हैं वो भी 30 to 50% तक ग्रो कर चुकी हैं। इनके वैकेंसी रेट्स कम हो चुके हैं बाय 10%, एंड इनकी रेंटल प्राइसेस 60% तक बढ़ी हैं ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। वेयर हाउसेज भी अगेन मैं ई कॉमर्स वाली एग्जांपल से ही लिंक करता हूँ, क्योंकि ये बिजनेसेस एक्सपैंड करें सो इनको चाहिए वेयर हाउसेस अपना सामान रखने के लिए। एंड एज बिजनेसेस आर इवॉल्विंग विद टेक्नोलॉजी, विद इंटरनेट, तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ रियल एस्टेट है इन द कमर्शियल सेक्टर जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। रेजिडेंशियल साइड पे अगर हम देखें, सो एक रूरल टू अर्बन ट्रेंड है। लोग अर्बन सिटीज के अंदर मूव हो रहे हैं और 2 से 3% तक ही हम उसके अंदर ग्रोथ देख रहे हैं कि हर साल लोगों का मूव करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है एनुअली फ्रॉम 2029 टू 2023। अगर हम इस वक्त अपनी हाउसिंग की यूनिट्स को एनालाइज करें तो हम लोग 45 लाख यूनिट्स का गैप है जो हम लोगों को अभी रिक्वायर्ड है इन आर अर्बन एरियाज, और इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे आगे जाके, कुछ मजीद फैक्टर्स को देखेंगे। और अगर हम कमर्शियल के मुकाबले एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो हम सबको घर चाहिए रहने के लिए, एंड उसकी जो डिमांड है वो एक स्टेबल तरीके से 8 से 10% तक हर साल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ती जा रही है। ये भी हमने एग्जैक्ट नंबर्स आपके सामने रख दिए। नाउ इफ वी लुक एट द डिफरेंसेस, किस बंदे को कहाँ इन्वेस्ट करने पे क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, सो ये दो हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं सेगमेंट्स के अंदर, और मैं इसके पीछे की लॉजिक भी आपको बताता हूँ। सो अगर हम कमर्शियल की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके अंदर 25 से 40% तक का रिटर्न लोगों को मिल सकता है अगर वो स्टार्ट के अंदर आए और इसको कंप्लीशन के बाद एग्जिट लें जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। वेयर एज अगर घरों की हम बात करें तो इट्स अराउंड 20 to 30%। मेच्योर एसेट्स की अगर हम बात करें, विच मींस कि जब ये कमर्शियल रियल एस्टेट बन जाएगी, इस्तेमाल होने लग जाएगी, तो ये आपको 12 से 15% की ग्रोथ देगी हर साल। और रेजिडेंशियल के केस में जब एक घर बन जाएगा तो वो हर साल उसकी कीमत 8 से 10% बढ़ा करेगी। इसी तरह जो रेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी देती है साल का, वो 5 से 8% के बीच वेरी कर रहा होता है, यानी करोड़ रुपए की चीज साल में 5 लाख से 8 लाख देगी, वेयर एज घर के केस में यही करोड़ रुपए की चीज 2 लाख से 4 लाख रेंट देगी। नाउ व्हाई इज देयर दिस डिफरेंस इन द ROI नंबर, द रेंटल यील्ड नंबर?
घर एसेंशियली एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कमर्शियल यूज के लिए बनी नहीं है, जिसको लोग बनाते ही इस नियत से हैं कि उन्होंने इसको खुद इस्तेमाल करना है, इसको एक एसेट बनाना है और बेसिकली उस एसेट को यूटिलाइज करना है, उसके अंदर खुद रहना है। जब वो घर को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऑडियंस टू एंड फ्रो आ रही है, रह रही है, सो घर के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ आई वुड से effort to retain the quality of that house, उसकी मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्चे आ रहे होते हैं, तो वो ओवरऑल ROI के नंबर को कम कर देते हैं। फिर घर डिज़ाइन भी कमर्शियल यूज़ केसेस के लिहाज से नहीं होते। अगर एक ऑफिस को पूरा फ्लोर चाहिए तो एक घर के अंदर तो 4 कमरे होते हैं, सो वो उसको एक ऑफिस के तरीके से यूज़ करना बिकम्स अ चैलेंज इज वेल। वेयर एज कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर हम लोगों के पास जगह डिज़ाइन ही लोगों के इस्तेमाल के लिहाज से की जाती है और वो लॉन्गर पीरियड्स के लिए ऑक्यूपाई भी हो जाती है, एंड देन उसके अंदर कोई खास खर्चा भी नहीं आता। जो भी टेनेंट होता है वो अपनी फिटिंग्स, अपनी अप्लायंसेस, सारी चीज़ें खुद ला के कर रहा होता है। नाउ अगर हम कुछ मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करें बेस्ड ऑन द डेटा, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 2024 से 25 के बीच हो क्या रहा है। सो हमारा जो GDP का नंबर है विच इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 2.5% पे 2024 में रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि 2025 के अंदर ये 4% तक बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का जो हमारा नंबर है वो 29% से गिर के 4% तक आ गया है। यानी अगर पहले एक 100 रुपए की चीज 129 रुपए तक बढ़ गई थी, तो अब वो 129 से आगे 29% नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ 4% मजीद बढ़ेगी। इसी तरह अगर हम इंटरेस्ट रेट्स को देखें, जो बैंक का एक रिस्क फ्री रिटर्न लोगों को मिल रहा था, इस्लामिक और नॉन इस्लामिक, उसकी डिबेट में हम नहीं जाएंगे, बट वो 22% था 7 मंथ अगो, बट राइट नाउ 5 कट स्टेट बैंक ने लगाए हैं और 13% पे बैंक का रेट आ गया है नाउ। छठा रेट कट हमारा जो है वो एक्सपेक्टेड है स्टेट बैंक की तरफ से, एंड दिस नंबर विल कम डाउन टू 12% इन द टाइम्स टू कम। सो बैंक्स के रिटर्न्स भी कम होते जा रहे हैं। व्हाट दिस मीन्स इज कि जब हमारा GDP बढ़ रहा है, हमारी इन्फ्लेशन का नंबर कम हो रहा है और हमारे बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, सो दिस इज द टाइम वेयर ऑल ऑफ दिस मनी दैट इज स्टोर्ड इनटू बैंक्स राइट नाउ एंड इट इज आउट ऑफ ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, वो बैंक से निकल के वापस से सब इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। ये सारे हमारे इंडिकेटर्स हैं विच आर टेलिंग अस कि इस टाइम के ऊपर इन द कमिंग 6 months property prices will pick up, because that is where majority of our money goes, that is where money is required is रहने की जगह चाहिए, रहने की जगह चाहिए, हम लोगों को कैफेज भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए, डिमांड ग्रोइंग है। सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी रीरूटेड सारी इंडस्ट्री के अंदर, एंड देन जो लोग अर्ली अडाप्टर्स होंगे वो इसका फायदा भी उठाएंगे। अब अर्बनाइजेशन के ट्रेंड की अगर हम बात करें, सो 3.6% से एनुअली हमारा ट्रेंड है कि लोग अर्बन एरियाज में मूव करें। व्हाट दिस मीन्स इज कि हम लोगों को 3 लाख नए यूनिट्स की जरूरत पड़नी है अब से हर साल। हम लोगों के 7 करोड़ 60 लाख लोग थे in 2017 in urban areas. Right now we have 9 crore and 30 lakh people which are in our urban areas. So हम लोगों को इस डिमांड को मैच करना है। इन लोगों ने अपना घर भी बनाना है, उनको एक घर रहने के लिए चाहिए, एंड उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोगों की जो तो टेक्नोलॉजी देर वाला आपका ये पार्ट है एग्जीक्यूट दैट होगा कैन फाइनली, प्ले कैन अ यू लाइक टेल अस? जी I have a question, so I need to know how long will it take that So, your speech is going for to the end. question answer, we have a segment at the end. I think we'll take 5 to 10 more minutes to complete this, and then you can ask your questions. Okay. Same. So, टेक इंटीग्रेशन हम लोग इस सेगमेंट के अंदर इसीलिए करें ताकि हम इस तेजी से बढ़ती हुई डिमांड को मैच कर सकें। सो टुगेदर इफ मोर पीपल कैन इन्वेस्ट टुगेदर, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो प्रॉफिट्स हैं, वो उन सब लोगों के साथ शेयर हो सकते हैं, एंड उस रियल एस्टेट जिसको हमें बनाने की ज़रूरत है वो हम तेज़ी से बना सकते हैं फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल, जो डेटा हमें दिखा रहा है। नाउ वन लास्ट थिंग कि हम रेंटल यील्ड एक प्रॉपर्टी की किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और उस रेंटल यील्ड के लिहाज से प्रॉपर्टी की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करें। सो
अगर हमें किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट पता हो तो हम उससे उसकी टर्मिनल प्राइस निकाल सकते हैं, अगर टर्मिनल प्राइस पता हो तो हम उससे उसका रेंट निकाल सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम अ कोर्स जो MIT का हमने रियल एस्टेट सिस्टम्स और वैल्यूएशन पे किया था। सो द फॉर्मूला इज कि किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी सालाना आमदन को अगर हम रेंटल यील्ड के नंबर से डिवाइड कर दें तो उसके इक्विवेलेंट होती है। रेंटल यील्ड का नंबर इस इंडस्ट्री के लिए कुछ स्टैंडर्डाइज नंबर्स हैं जो हमने पहले ROI वाली स्लाइड्स के अंदर भी देखे थे। सो ये नंबर्स हम प्लग इन कर देंगे एंड वील टेक एन एग्जांपल जहाँ पे 40,000 पर मंथ का रेंट आ रहा है हमें एक एक्स प्रॉपर्टी से। सो लेट्स सी कि ये 40,000 का किराया देने वाली चीज अगर रेजिडेंशियल है तो उसकी क्या वर्थ बनती है, और अगर कमर्शियल है तो उसकी क्या वर्थ बनती है, एंड वील कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। सो 40,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें सो वी गेट 4,80,000 पर ईयर। रेजिडेंशियल के केस में हमारी जो रेंटल यील्ड है वो 3% है। सो हम इसको 480 को 3% से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1,60,00,000 का जो घर है वो तकरीबन 40,000 किराया देता है। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। अगर बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी के अंदर कोई 5 मरले का घर इस रेंज में होगा तो वो रफली इतना किराया देगा। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टीज 5% देती हैं, यानी 6 लाख रुपीज की शॉप आपको 40,000 का किराया देती है ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, एंड देन 4,80,000 ईयर ऑन ईयर। सो इसीलिए जिन लोगों का गोल पैसिव इनकम होता है उनके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, बट इफ समवन वांट्स टू हैव एन एसेट ऑफ देयर ओन फर्स्ट, प्लेस वेयर यू नो दे कैन लिव, अ रूफ ऑफ देयर ओन, सो उनके लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज अ गुड प्ले जहाँ पे उनको रेंट भी मिल रहा है एंड देयर इज एन एसेट जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं और फ्यूचर में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ लास्टली डाउ प्रॉपर्टी की चीज़ें हमने कुछ देखी एंड आई वुड वांट टू सम इट अप कि हम लोगों ने रियल एस्टेट को कोशिश की है कि हम एक्सेसिबल बनाएं फॉर एवरीवन। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें लोग 1 स्क्वायर फीट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जिनमें आप 25 फुट से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन प्रोजेक्ट्स जहाँ पे एंट्री टिकट साइज ही 50 लाख या करोड़ रुपए का था, we bring all those certified verified projects with all the legal information with the best prices for people, and we enable them कि वो अपनी ये वाली जर्नी 16,000 रुपए से भी शुरू कर सकें। The platform is secure and transparent because of the technology that is being used in addition to all the local documentation that is provided to people by any other person. And हम लोगों की इस सारी चीज के अंदर अभी तक प्रूवन सक्सेस भी है। सो हमने 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, 4th प्रोजेक्ट हमारा इस मंथ में कंप्लीट हो रहा है आउट ऑफ 7, एंड पीपल हु हैव इन्वेस्टेड विद अस दे हैव मेड एन एवरेज गेन ऑफ अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर हमारे स्टार्ट से लेके अभी तक जो हमारी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। सो दीज आर सम की टेक अवेज। हमने टोकनाइजेशन पे बात की, हमने कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया, हमने उनको वैल्यूएट करना सीखा, एंड देन वी गॉट सम इनसाइट्स इनटू द मार्केट कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट अभी कहाँ पे खड़ी है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट how Dow PropTech is changing the way people invest and people get benefit out of this industry. So lastly, before I end, I would want कि chatbot और meetings का पेज तो मोहित ने आपको दिखा दिया इन वेबिनार का। I would love कि अगर मोहित आपको फायर कैलकुलेटर दिखाए, बट बिफोर दैट वेबिनार 15 का हम लोगों ने डिस्काउंट कोड आप सबके लिए रखा है। सो एनीवन हु प्लेजेस एंड पेज, एक हफ्ते तक के लिए ये कोड अवेलेबल होगा ऑन ऑल आवर प्रॉपर्टीज ऑन द प्लेटफॉर्म। यू विल गेट 15% डिस्काउंट इस कोड को चेकआउट पे अप्लाई करके। सो फायर कैलकुलेटर हम देख लेते हैं, देन वील हैव आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो हमने एक कैलकुलेटर बनाया एंड फायर कैलकुलेटर के पीछे लॉजिक बेसिक ये थी कि देयर इज दिस मूवमेंट कॉल्ड द फायर मूवमेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। पीपल वांट टू कैलकुलेट कि वो कितनी इनकम मंथली सिक्योर कर लें बाय एन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तो वो रिटायर कर सकते हैं, एंड दे वांट टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। सो इस मूवमेंट के लिए, इस सारी चीज़ के लिए हमने कैलकुलेटर बनाया, एंड आई वुड वांट कि मोहित अपना रिटायरमेंट प्लान बनाए आप सबके सामने, एंड देन आई विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। Thank you so much, Basan, for this insightful session. I will just quickly show you the calculator that we're working on, and then we can move on to the questions.
I hope my screen is visible. बेसिकली हमारा इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लान कर सकें. दिस इज द सिंपल फायर कैलकुलेटर दैट we're showing. अभी एडवांस फायर कैलकुलेटर पे काम कर रहा है. इंशाल्लाह once it's done we'll also make it available to our whoever signs up on our platform. So let's say मैं अभी अगर मैं अपनी बर्थ डेट डालूं, so 16th May 2000, and then I want to retire, let's say 30 years में, और मुझे 1 लाख की पैसिव, let's say 5 कर देता हूँ मैं, राइट? 1 लाख 5 लाख की मुझे पैसिव इनकम चाहिए. तो यहाँ पे आपको एक डिटेल रिपोर्ट भी होगी जिसमें हम सारे एसेट क्लासेस को कंपेयर करेंगे. यू विल प्रोवाइड योर ईमेल एंड देन विल ईमेल यू दैट डिटेल रिपोर्ट. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको एक in a glance, you can see the stark difference between the amount that you'd have to save in the bank. ये हमने directly comparison किया in the banking products जो आपको देती हैं around 10.12 annual. ये हमारा 10 साल का डेटा का एवरेज है. And then developmental real estate, 28% हमने अगेन एक डेकेड का डेटा है where we've seen के इतना आपको अराउंड आपको रिटर्न मिलता है. तो 6 लाख आपको या मुझे बचाने पड़ेंगे, विच इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक मी जो कि 6 लाख पर मंथ सेव करे और बैंक में डाले, और ओवर द टाइम मुझे फिर ये पैसिव 5 लाख की पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए एट एज 30. और फिर रियल एस्टेट में मैं काफ़ी अमाउंट कम हो जाती है, विच इज़ 1.31 लाख पर मंथ PKR. तो ये हम आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि एक फर्स्ट कि यू नीड टू स्टार्ट सेविंग राइट नाउ सो दैट यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट एनी एज दैट यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? एंड देन एक छोटा सा डिफरेंस, एक छोटा सा ग्लांस कि आपको कितनी अमाउंट सेव करनी पड़ेगी एंड विच ऑफ द एसेट्स आर बेस्ट for you. So real estate, obviously, since we work with developmental real estate and we provide the platform, तो हम वो दिखाना चाह रहे थे कि कितनी कम अमाउंट आपको लगेगी to achieve your financial independence. I would like to hand over. Sure. So I'll increase my age to 40. अब अगर हम let's say मैं 40 पे रिटायर होना चाहता हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी कम हो जाती है. अगर मैं 9,000 की, मतलब मैं बार बार रियल एस्टेट में, मैं जिस तरह हमारा प्लेटफॉर्म अलाउ करता है दैट यू कीप ऑन बाइंग स्क्वायर फीट, और फिर उसके ऊपर 28% का आपको रिटर्न मिलता है डेवलपमेंटल कैपिटल गेन, तो मुझे सिर्फ 9,000 रुपये पर मंथ रियल एस्टेट में डालने हैं बाय द एज ऑफ 40, ताकि मुझे 5 लाख की पैसिव इनकम मिल सके. और बैंक में अगर मैंने डालना है तो 1,30,000 रुपये पर मंथ मुझे डालने पड़ेंगे, विच इज स्टिल वेरी स्टार्ट फॉर मी. ऑब्वियसली एज माई एज इंक्रीजेस, माई इनकम इंक्रीजेस, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल हो जाए. बट जस्ट टू शो यू द डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है. Yeah, now I would like to hand over the webinar to Basim again. He will take your questions. Thank you. जी, so I will start with the questions जो हमारी कमेंट सेक्शन में, एंड देन अगर कोई अनएड्रेस्ड रह गया तो वो यहाँ पे लाइव भी हमारे साथ क्वेश्चंस को कर सकता है. आई विल जस्ट पिक वन बाय वन. सो एंड्रॉइड और iOS की ऐप का आपने पूछा. सो आवर टीम इज वर्किंग ऑन द ऐप, बट अभी तक हम लोगों का वेब प्लेटफॉर्म ही है और हमारे सारे टूल्स इस वेब प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड हैं. आप लोगों ने स्लाइड का पूछा. सो आई थिंक कि हम लोगों के वेबिनार का पेज मोहित ने आपको बताया बना हुआ है, और उस पेज के ऊपर ये रिकॉर्डेड वेबिनार आपको मिल जाएगा. सो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, उसके अंदर स्लाइड्स भी अवेलेबल होंगी एंड ऑल ऑफ दिस लाइव सेशन वुड बी देयर. इसी तरह एक क्वेश्चन था कि रेंटल यील्ड को डिफाइन करें. सो रेंटल यील्ड बेसिकली अगर आसान लफ्जों में समझाया जाए तो ये कि एक प्रॉपर्टी साल के अंदर अपनी टोटल वैल्यू का कितने % आपको देती है. सो हमने बोला कि कमर्शियल प्रॉपर्टी 5% दे रही है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 3% दे रही है. व्हाट दिस मींस इज कि करोड़ रुपए की अगर कोई भी चीज़ है तो उसका 5% 5 लाख बनता है, तो वो साल में 5 लाख दे रही है. इसी तरह अगर वो रेजिडेंशियल है तो वो 3% देती है, यानी करोड़ रुपए की चीज़ साल का 3 लाख दे रही है. सो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं रेंटल यील्ड को.
आपने पूछा हाउ टू लिक्विडेट द प्रॉपर्टी और ट्रांसफर द अमाउंट टू बैंक। सो हम लोगों ने बेसिकली एक प्रोसेस बनाया एंड उस प्रोसेस को इस तरह से रखा है कि हमारा सिस्टम जो है वो इफेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के साथ, लोग अपना नुकसान भी ना करें, एंड इट्स विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। फॉर द बिल्डर जो बिल्डिंग बनाना चाह रहा है उसके पास भी एक कैश फ्लो आ रहा हो ताकि वो बिल्डिंग बन रही हो, फॉर पीपल हु वांट टू मेक अ कैपिटल गेन उनको वो कैपिटल गेन भी मिल रहा हो, एंड फॉर समवन जो एग्जिट करना चाहता है उसको एग्जिट भी मिल रहा हो। सो इसके अंदर व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि रियल एस्टेट जो है जब लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं सो इट्स जनरली अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने सुना होगा स्टोरीज ऑफ दादाजी जिन्होंने एक प्लॉट लिया था और वो प्लॉट इस टाइम पे 15 लाख का प्लॉट इस टाइम पे 10 करोड़ का बन चुका है पता नहीं कितने सालों में। सो पीपल जनरली कीप देयर अमाउंट फॉर 10 years, 15 years, 20 years। वो अपने एसेट्स को इसी तरह प्लान करते हैं, दैट्स व्हेन इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। हाउएवर जब लोग कुछ अमाउंट डाल रहे होते हैं, छोटी अमाउंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो दे टाई अप शॉर्ट टर्म गोल्स टू देयर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने उम्रा करना है, लोगों के इस तरह के गोल्स होते हैं। सो उनके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम ये डेवलप किया कि आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा जो आप जब भी आपने इन्वेस्ट किया, ताकि हर टाइम पे ट्रेडिंग ना चल रही हो। एंड आफ्टर 1 year आप हमारी डिजिटल मार्केट प्लेस के ऊपर अपना ऑर्डर लिस्ट करके बेच सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि 80 करोड़ रुपए हम लोगों ने वहां पे लिक्विडेट करके दिए। हम लोगों का उस मार्केट प्लेस पे एवरेज टाइम जो था दैट वाज अराउंड 50 days, 45 to 50 days, और 30% तक के मुनाफे के साथ लोगों ने वहां से पैसे निकाले। दैट्स ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 इज ऑब्वियसली हम लोगों का अपना भी एक लिक्विडिटी का पूल है, हम उधर से भी रीसेल्स इनेबल करते हैं। नंबर 3 इज कि हम लोगों के पास पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 इन्वेस्टमेंट की जर्नीज हैं। नंबर 1 इज कि आप पूरा का पूरा अपार्टमेंट लेते हैं। नंबर 2 इज कि आप उस अपार्टमेंट की जगह कुछ स्क्वायर फीट लेते हैं। तो जब कोई बंदा पूरा अपार्टमेंट लेता है ही पेज सर्टेन सेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। 200 स्क्वायर फीट उसने एक्वायर कर लिए, हर महीने वो 10-10 स्क्वायर फीट खरीद रहा है, और इस तरह के काफी से लोग हैं। सो हमारे पास एक पूल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी है जिसके पास पैसे हैं और उन पैसों से उन्होंने स्क्वायर फीट लेने हैं। तो एक साइड पे हमारे पास जिन लोगों के स्क्वायर फीट बिकने के लिए आए हुए हैं वी सेल दोज ऑफ एज वेल। सो इस तरह से हम इस लिक्विडिटी को इंश्योर करते हैं। कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो जहाँ पे 80 लाख या करोड़ रुपए की चीज को अगर बेचने के लिए एक बंदा आपको चाहिए होता था, विद दिस सिस्टम वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करके इस चीज को ज्यादा लिक्विड बना देते हैं और आसानी पैदा करते हैं आपके लिए। इसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रीट्स एंड स्टॉक मार्केट। गुड क्वेश्चन। सो रीट्स और स्टॉक मार्केट जो है वो आपका पेपर एसेट है। आप शेयर्स लेते हैं एक कंपनी में और उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है। स्पेसिफिकली रीट के केस में आप एक कंपनी के शेयर्स बाय करें, वो कंपनी उस पूरी बिल्डिंग को ओन करती है, उससे जो किराया आता है वो आपको मिलता है, और उसकी प्राइस जब भी अप जाती है या डाउन जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करती है। यहाँ पे यू आर नॉट बाइंग शेयर्स, इट्स नॉट अ पेपर एसेट। आप बेसिकली जो स्क्वायर फीट ले रहे हैं, चाहे वो 1 स्क्वायर फीट है, 10 स्क्वायर फीट है, इट्स अ फिजिकली बिल्ट अप स्क्वायर फीट ऑफ दैट बिल्डिंग। अगर आपके स्क्वायर फीट्स इनफ होंगे, हमने आपको पूरी बिल्डिंग के टोटल स्क्वायर फीट दिखा दिए, यानी अगर आपके 500 स्क्वायर फीट जमा हो जाते हैं या 1000 स्क्वायर फीट जमा हो जाते हैं, तो आप उस बिल्डिंग के गिवन यूनिट्स में से कोई यूनिट भी बुक कर सकते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट गेट है, बट यू कैन डीमार्केट अ फिजिकल यूनिट। आप उसमें रह सकते हैं, आप उसको जो है अपना कोई अगर शॉप है तो आप उसके अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऑफिस है तो अपना ऑफिस खोल सकते हैं। In REITs case, you cannot utilize them like this. So it's purely a paper asset. And with real estate, people want that sense of ownership. People want to utilize it at their own will, and that system just takes this away from them. यहाँ पे इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि यू स्टार्ट स्मॉल एंड यू कैन बिल्ड टुवर्ड्स दैट थिंग जो कि लोग पहले एक बड़ी कैपिटल अमाउंट के साथ करते हैं। सो आपने फायर कैलकुलेटर का पूछा, मोहित ने आप लोगों को बता दिया। Then you're saying if we have to transfer money directly to developer, then how can I be sure that it is safe? Is this SCCP registered? So each developer
जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सर्टिफाइड और वेरीफाइड हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि हर प्रोजेक्ट के एनओसीज सबके सब हमारे प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं। लिस्ट होने से, पब्लिक के लिए अवेलेबल करने से पहले ही हम उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखते हैं, उसके एनओसीज, उसके अप्रूवल सब होंगे। Each project is registered as a separate company by the developer SECP के केस में। So हमने elements को देखा था and I'll just quickly show you elements का document। So elements का ये document लगा हुआ है जो SECP के साथ registered है। So elements residential LLP। So we make sure कि जो building है जिसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करें वो एक सेपरेट कंपनी हो, किसी इंडिविजुअल के नाम पे लैंड ना हो, और वो SECP के साथ रजिस्टर्ड हो। व्हेन यू पे डायरेक्टली टू दैट एंटिटी एंड वही एंटिटी आपको एक एरिया राइट्स एग्रीमेंट, एक अलॉटमेंट एग्रीमेंट इशू भी करती है। उमेर गौरी साहब ने पूछा है, can you kindly mention, is this platform recognized by a relevant authority? So I think it pretty much answers your question as well. हमारी सारी legal information, सारा कुछ it's all registered, it's all out there on the platform, publicly mentioned किया हुआ है। If someone is already retired, what would you suggest? So for someone who's already retired, and ऐसा काफ़ी सा persona हमारे साथ invest करता भी है, जनरली उनको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। दे वांट अ हैसल फ्री मंथली इनकम, एक ऐसा टेनेंट जिसको उनको मैनेज ना करना पड़ रहा हो, जिसके पीछे उनको दौड़ना ना पड़ रहा हो कि अब वो रेंट हर साल बढ़ा दे, प्रॉपर्टी उसने अगर छोड़ दी है तो अब नया टेनेंट उन्हें ढूंढना पड़ रहा हो। सो वी हैव बिल्डिंग्स जो एक ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हैं फॉर 10 ईयर्स एंड हर साल उनका रेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है, हर महीने उनका रेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। सो इट्स अ हैसल फ्री सोल्यूशन फॉर दोज पीपल एंड दे कैन बेसिकली डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, और वो अपनी सेकेंड इनकम या एक रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं उससे, जो उनको विल गिव देम ईज ऑफ डूइंग व्हाटएवर दे वांट। सो राहील भाई ने हमसे पूछा है, अगर कुछ स्क्वायर फीट बाय किए हों कब तक सेल हो जाएंगे? सो मैंने उसका जवाब दे दिया है, साल का लॉक इन है, उसके बाद आप इसको बेच सकते हैं। 3 तरीके भी मैंने उसके आपको बताएं। हाउ कैन यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्रायर टू इट्स कंस्ट्रक्शन? सो गुड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको हम डिफाइन करते हैं, हमने हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे। सो वो उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का डॉक्यूमेंट है और वो उसका एक वाइट पेपर है। सो वाइट पेपर बेसिकली डिफाइन करता है कि ये बिल्डिंग क्या है, उसके अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी आई हुई है, उसके अंदर उसकी सिमिलर बिल्डिंग्स का कंपैरिजन भी आया हुआ है उस विसिनिटी में, उसके अंदर उसकी कंप्लीशन के ऊपर कौन सा ब्रांड उसको यूटिलाइज करेगा, वो कितना किराया देगा, और उस किराए के लिहाज से उसकी टर्मिनल वैल्यू क्या बनेगी, ये चीज़ भी कैलकुलेटेड है। सो हाउ वी नेगोशिएट एंड कैलकुलेट एक प्रोजेक्ट की प्राइस है कि हम एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 फैक्टर इन करते हैं। सो लैंड प्राइस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसके अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स, इसके अंदर फिनिशिंग एंड फर्निशिंग, इन सब प्राइसेस को ऐड करते हैं एंड वी शो यू कि हर चीज़ का कितना स्प्लिट है इंडिविजुअली और पर स्क्वायर फीट क्या प्राइस बन रही है। और फिर हम कहते हैं कि एट द एंड हम लोगों ने हर साल इसको एक्स अमाउंट से अगर बढ़ाएंगे तो एंड के ऊपर हमारे पास एक ब्रांड होना चाहिए जो इसकी टर्मिनल वैल्यू का 5% किराया दे, ताकि ये इसकी ग्रोथ को इंश्योर कर सकें, इसको रियलाइज करा सकें। एंड दिस इज द होल लॉजिक। सो वो वाइट पेपर आप अगर पूरा पढ़ेंगे उसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। प्रॉब्ली हम इसके ऊपर शायद कुछ आने वाले टाइम्स के अंदर एक पूरा वेबिनार भी रखें जिसमें हम आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करें और बताएं। सो हमने जो कोर्स किया है MIT का रियल एस्टेट वैल्यूएशंस का, उसके मेथड्स को यूज़ करके हम एक प्रॉपर्टी को प्राइस करते हैं, उसकी फोरकास्टिंग करते हैं और वो हम सबके लिए ओपन रखते हैं फॉर द होल कम्युनिटी। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी विल बी प्रेफर्ड बाय डाओ टू सेल व्हेन डाओ हैज इट्स ओन इन्वेंट्री एज वेल एज सम इन्वेस्टर्स आल्सो सेलिंग ऑन सेम प्लेटफॉर्म। सो जो हमारी सेकेंडरी मार्केट प्लेस है उसके ऊपर जनरली जो है इट्स अप टू पीपल कि वो कहाँ से चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। एज अ रूल हम लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं करते कि वो सेकेंडरी मार्केट प्लेस से बाय करें, बिकॉज दैट वुड कैनिबलाइज द होल थिंग। सो अगर आप देखें कि एक बिल्डिंग बन रही है एंड कॉमन गोल यही है कि सब लोग मिलके पैसे डालेंगे, सब लोग मिलके उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के काम को एड करेंगे और उसकी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन तेजी से होगी उसकी पर स्क्वायर फीट प्राइस बढ़ेगी। सो वहाँ पे सरिया, लेबर,
सारे लोग मिलके काम करेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। और जैसे ही वो सारी चीज़ें इस बिल्डिंग में लगती जाएंगी, एक ब्रांड आएगा, इसको ऑक्यूपाई करेगा, उसका रेंट पे करेगा, एंड देन इसकी टर्मिनल प्राइस बढ़ेगी। सो अगर इस सारे प्रोसेस के बीच में हर टाइम पे सेकेंडरी ट्रेडिंग हम ओपन करें तो वो बिल्डिंग के अंदर आने वाले कैश फ्लो को डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए हमने कहा कि हम 1 साल के बाद मार्केट प्लेस के ऊपर एक बंदे को अलाउ करते हैं कि वो ऑर्डर लिस्ट करे, और हम लोग जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे वो फर्स्ट टाइम मार्केट प्लेस से डायरेक्टली बाय नहीं करता, वो एक प्रोजेक्ट से बाय करता है। सो वीव प्लेस्ड द चेक्स इन द सिस्टम जो इंश्योर करे कि ये एक सस्टेनेबल तरीके से सारी चीज चलती रहे। सो कराची के बिल्डर्स के ऊपर आपने बात की, सो आई वांटेड टू टेल यू कि हम कराची का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, विल बी इन लाहौर। फ्यूचर फेस्ट एक इवेंट हो रहा है, उसके ऊपर आरिफ हबीब ग्रुप है हमने जिनके साथ पार्टनर अप किया है। सो 24 जनवरी को हमारे पास कराची का प्रोजेक्ट आ जाएगा आरिफ हबीब ग्रुप का। सो इट्स ग्लोब रेजिडेंसी रीट। ये ऑलरेडी एक रीट बनी हुई थी, रीट के ऊपर भी चल रहा था ये प्रोजेक्ट, बट इसके अंदर से एक ऐसा पार्ट हम लोगों के पास आया जिसको हम टोकनाइज करके चलाएंगे। वील अलाउ पीपल के वो 1 फुट से भी शुरू करें एंड दे बिल्ड अप टू गेट अ होल अपार्टमेंट। अच्छा जी, एग्जिट प्लान मैंने बायर्स का एक्सप्लेन कर दिया। यू कैन सी द रिकॉर्डेड वर्जन फॉर दिस। Do you have any cap on investment being made in properties? So cap developers सेट करते हैं। किसी डेवलपर ने कैप किया होगा 5000 स्क्वायर फीट पे, किसी ने 2000 पे, किसी ने 3000 पे। सो और वो कैप जो है हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट हो सकता है। वंस यू गो टू द चेकआउट यू कैन एक्सपीरियंस इट, वो आपको नीचे नजर आ रहा होगा। थैंक यू फॉर द रिमार्क्स तौकीर भाई। द I have a रिटर्न, question. Can I ask it? जी जी बस ये लास्ट अली भाई, मेरे ख्याल है 2 क्वेश्चंस रह गए कमेंट के, मैं ये गो थ्रू कर लूँ तो फिर आपके हम कर लेते हैं। द रिटर्न एंड परसेंटेज मेंशन्ड ऑन द प्रॉपर्टी is it capital gain and the rental yield is after completion of property and is it transfer to investor account monthly? So आहद भाई अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, मैं एक दफ़ा रिआइट्रेट कर देता हूँ, वैसे स्लाइड्स के अंदर भी मेंशन्ड है कि आपके इन्वेस्टमेंट के 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक ये कि आपकी पर स्क्वायर फीट प्राइस हर साल बढ़ रही है, सो आप जब भी अपने स्क्वायर फीट बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन होगा। दूसरा ये कि आपको रेंट मिलना शुरू हो जाता है आफ्टर द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। सो हर प्रॉपर्टी का मेंशन है कि उधर पर स्क्वायर फीट रेंट कितना मिल रहा है, सो वो मंथ ऑन मंथ आपके अकाउंट में आता जाता है। सो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हमारी 12% तक का कैपिटल ग्रोथ दे रही होती हैं और 5 से 6% तक का रेंट दे रही होती हैं सालाना। तो दिस इज द ग्रोथ, कुछ केसेस में ये 15% तक की ग्रोथ भी दे रही होती है। ऑल ऑफ दिस इज मेंशन इन द प्लेटफॉर्म, ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड ऑन दीज स्लाइड्स एज वेल, यू कैन वॉच इट अगेन वेबिनार्स पेज पे जाके। सो राव इमरान कह रहे एक्सप्लेन इन 1 minute सेलिंग एग्जिट वे इन 3 ways, आई मिस्ड इट। राव इमरान साहब, we're short on time, I would love to explain it again। आप रिकॉर्डेड सेशन इसको मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पे देख लीजिएगा, ये तीनों चीज़ें आपकी आंसर हुई हुई हैं। Someone has entire residential property, then can they also live in it after completion? Yes, they can। जी अली भाई, I would want कि आप अपना सवाल पूछें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हम उसको भी आंसर करने की कोशिश करते हैं। I think Ali Bhai is not over here. So अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप में से कोई भी उसे पूछ सकता है। If not, we'll end the session. How is the loss shared if a part of it is destroyed by disasters, fires, etc.? Say entire property. If someone has an entire residential property, then entire property will I transfer have a to owner. question. Sorry, I have some internet connectivity issue. My question is this: that what are your client feedback? Because right now I am watching your website, and there are a lot of deadlines that you have mentioned, but at the same time, when I go to your Facebook, they are not matching that. And secondly, if you सही go to है। well, you have updates till 2022. So a lot of things are the words you are saying in mismatch, and that all the speech that you have done
is all about a general real estate market and what their cash flow is and what is their rental yield. It is nothing to do with your projects. So I suggest you that you should go with the topic of your projects, that these are your projects, these are your rates, these are your business models, and these are how you are going to facilitate us so that we are interested to invest in that. So whatever the research or whatever the topic you discussed, anyone can Google it and learn it from the YouTube, and you can save the time of the people. So we are better interested in the projects and some business model or some revenue model. If you explicitly mention that with a very quantifiable numbers and also the trust factor, because in market there are a lot of real estate agents are right now escaped and there's a very bad trauma going on. So you guys also have same bad reviews little bit in your maps. I am checking right now. So it's better if you clear us those things so we can understand more accurately. Ali bhai, thank you for your feedback. The purpose of our webinar is clear. We want to educate people on certain sets of real estate segments, and it is कि वो independent हो of what we do. हम लोगों की जो अपने प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग डिस्कशन है वो हमारे यूट्यूब के ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सप्लोर एंड लर्न के टैब के अंदर बहुत डिटेल से हुई हुई है. हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने एक एक डिटेल इसीलिए इंश्योर की है कि हर बंदा उस चीज़ को खुद इंटरप्रेट करे, लर्न करे. मीटिंग्स पेज इसलिए बनाया है कि किसी ने उसके ऊपर Sorry to cut स्पेसिफिकली you. बात Can you करनी है. tell me where is प्लीज Learn and Explore? प्लीज आई वुड वांट कि आप Can you tell me मुझे where अलाउ is Learn करें and कि Explore link in the website and all that? आई थिंक कि आप मुझे अलाउ करें कि मैं की सारी चीज़ को आंसर करूं. आई डिड नॉट इंटरप्ट योर क्वेश्चन एंड आई वुड वांट कि यू गिव मी द सेम चांस एंड अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं. सो आई थिंक कि हम लोगों ने जो सारी चीज़ें बनाई हैं, जिस तरह एक फायर कैलकुलेटर है, जिस तरह प्लेटफॉर्म का भी मैंने पूरा डेमो दिया है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर की मैंने आपको कुछ नंबर्स भी दिखाए हैं, सारी चीज़ें दिखाई. यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर सारी अपडेट्स और डिटेल्स मौजूद हैं. कोई भी बंदा अगर स्पेसिफिक डिस्कशन उसके ऊपर करना चाहता है तो वो सब एवेन्यूज आप लोगों के लिए ओपन है. यू कैन गो टू meetings.dowproptech.com, यू कैन बुक अ सेशन, यू कैन टेक अ पर्सनलाइज्ड डिस्कशन ऑन डाउ के किसी भी प्रोजेक्ट एंड गेट इन टच विद द पर्सन दैट यू लाइक द मोस्ट, जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है. हाउएवर द पर्पस ऑफ दीज वेबिनार्स आर कि हम लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करें और उसके ट्रेंड्स, उसके नंबर्स, उनकी चीज़ें बताएं. हर बंदा हर टाइम के ऊपर ये सारी रिसर्च नहीं कर रहा होता एंड वी वांट कि अगर हम लोग इसको कलेक्टिवली सब लोगों के लिए करते हैं तो दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम उनके साथ शेयर करें. सो जी, are there? Please tell us where is the Learn and More option in your website, as you told me that you can go on जी the जी जी Learn and More option on the जी जी website. जी I will. So I'm not able to get. Can you please guide that? जी जी I will. So I'm sharing my screen. आप हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है इसके लेफ्ट पे ये सारे टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं. मैंने इसको थोड़ा टाइम यूज़ नहीं किया तो ये ऑटो लॉग आउट हो गया. आई विल जस्ट लॉग इन. सो यहाँ पे आपका लेफ्ट पे सबसे पहले पोर्टफोलियो का पेज आ जाता है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं. दिस इज योर रेफरल्स पेज, अगर आप किसी को रेफर करते हैं देख सकते हैं. एट द एंड आपको यहाँ पे एक्सप्लोर एंड लर्न का टैब नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको डाओ और उसकी चीज़ें हम नीचे भी मूव करेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रही हैं. सो टैक्स की डिस्कशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डिस्कशन, हमारी काफ़ी सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद आपको नज़र आ रही हैं. So I have यूट्यूब to. So I have to create an account in order to go this. So I have to Yep, create an account. yep, you have to So I'm create an not a account. customer. I didn't invested anything. So can I create an account? Yep. The account is free. आप अपने Gmail के through account बना सकते हैं and you can go to the Explore and Learn tab and see all of this information. You can also see projects की सारी information on the platform as well. You don't have to pay for it. The purpose is कि आपको सारी information day one पे मिल जाए और उसके बाद आप investment का decision. To get my information. So that's another win-win situation. What benefit you guys are getting when we are going to invest it? So definitely So, there will be some बिल्कुल benefit. exactly, there is no one is doing Okay. charity work Kindly, because no one is as a business yeah. model. As a business model हम लोगों का business model ये है कि
सो एक कन्वेंशनल रियल एस्टेट थी जिसके अंदर एक चीज में बिकना होता था तो उसको बेचने के लिए देयर वर मल्टीपल ब्रोकर्स, एक ब्रोकर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इन ऑल द मार्केट। सो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से पांचवें तक जब चीज जाती थी तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाती थी, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। सो जिस तरह आपको मैं एग्जांपल देता हूँ पार्क व्हील्स की, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ booking.com की, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेलिंग ऑफ समथिंग को फैसिलिटेट करें। दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेटफॉर्म कलेक्टिवली, और जब उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लोग होते हैं तो वो बेस्ट प्राइसेस नेगोशिएट करते हैं, एंड उस बेस्ट प्राइसेस के अगेंस्ट वो सर्विस चार्जेस को चार्ज कर लेते हैं। सो हम लोगों के सर्विस चार्जेस डेवलपर से चार्ज होते हैं उसके स्क्वायर फीट्स बेचने पे जब भी कोई बंदा हमारे प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करता है, एंड सेकेंडली जब भी कोई बंदा हमारे प्लेटफॉर्म से एग्जिट करता है तो हमारी मार्केट प्लेस को यूज करता है, हमारी कस्टमर बेस को यूज करता है, सो हम उससे एक सर्विस फी चार्ज करते हैं विच इज रिग्रेसिव। सो 5% इन ईयर 1, 4% इन ईयर 2, 3% इन ईयर 3। सो जितना लॉन्ग टर्म कोई चलेगा इस प्लेटफॉर्म के साथ उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट है, और ये इस प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू सोर्सेज हैं।